Hello students, welcome to Unacademy platform. This platform provides you daily live classes, structured courses, live test quizzes, and unlimited access of subscription. You can also download Unacademy Learning app. This is available on Google Play as well as Apple Store. This is about me, and this is my Telegram link. This is my Unacademy profile link. These are the examples of structured courses on the platform. These are the different subscription plans available on the platform. You have Hugo with Plus, you have live classes, test series, practice, structure schedule. If you choose iconic, you have this additional benefit whereby you get personalized attention. Okay, all these plans are available at 10% discount if you apply the code Amit PS. Okay, again, these are the different GS subscription plans of the different durations, all available at 10% discount if you apply the code Amit PS. Okay, this is the summit which is going to take place. So you are advised to register for it. Okay, these are the speakers who are taking part in the summit. These are the event guides, and these are the batches which are starting from tomorrow. These are the batches which are starting, and this is going to start from 6th February. Okay, 6th February. So you can join these batches. Iconics price hike is going to be there, and that is why you are advised to subscribe for it before there is a price hike. Okay. Okay, these are the again GS and optional subscription plans on the platform, which are again available at all these are available at 10% discount if you buy the code from NPS. Okay, okay. Now, in the previous parts, I have discussed about various concepts. Okay, जैसे कम्युनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया है, फिर सोशलिज्म के बारे में बताया. I also discussed liberalism, okay, fascism, or conservatism. And there, I told you about the horseshoe. Okay, a horseshoe which can be drawn here. Why? Because I will tell you that अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे हैं, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो जाएगा. Fascism, conservatism, okay, liberalism, okay, and socialism, and then finally communism. Okay, ऐसे देखा था. Actually, I told you about a linear spectrum. लीनियर स्पेक्ट्रम, ये चीज यही लीनियर स्पेक्ट्रम में मैंने रखी थी, जहां पास यहाँ कम्युनिज्म था और यहाँ फासिज्म था. okay? अब इस लीनियर स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि फिर आप यहाँ पास सोशलिज्म रख दोगे, यहाँ पास लिबरलिज्म रख दोगे, ओके, यहाँ कंजर्वेटिज्म रख दोगे, fascism. Why I suggested for horseshoe shape? This was mainly because this happened because when you compare these two systems, that is communism and fascism, although they are in the opposite end of this very spectrum, linear spectrum, but the kind of authoritarianism that you see in communism is similar to that you find in fascism. This is the left extreme, that is communism. This is the right extreme, that is fascism. But ultimately, both are similar in one extent, that is that both are what? Both are rightist. That is both are extreme. Okay, and that is why they start looking similar to each other. Okay, and that is why you need to draw this horseshoe shape instead of linear spectrum. Okay,
आर यू गेटिंग इट? चलिए ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया देन आई कैन डिस्कस अबाउट वेरियस अप्रोचेस नाउ. ठीक है, अप्रोचेस. अप्रोचेस और अप्रोचेस में जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे. इसमें बिहेवियरलिज्म एक है. बिहेवियरलिज्म. बिहेवियरलिज्म. अच्छा, बिहेवियरलिज्म को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एक्चुअली अ बिलीफ. ये एक तरह का बिलीफ है. ओके, बिलीफ कैसा? एक ऐसा बिलीफ कि सोशल थ्योरीज should be structured only on the basis of observe observations. Okay, क्या बिलीफ है ये कि सोशल थ्योरीज should be structured or constructed only on the basis of observable behavior. Okay, just 1 minute. Observable behavior. अप्रोचेस में बिहेवियरलिज्म के साथ साथ हम दूसरे अप्रोचेस भी देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियरलिज्म में ही हमने बहुत सारे अप्रोचेस को देखा है. इसके बाद बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म आएगा. ओके, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आएगा. पोस्ट बिहेवियरलिज्म में यहाँ पास बिहेवियरलिज्म से कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पास बताया जाएगा. ओके, तो आपको उन चेंजेस को यहाँ पास ऑब्जर्व करना है. उन चेंजेस को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू डिस्कशन ऑन बिहेवियरलिज्म. Behaviorism. So as I told you that it is actually what belief system. Okay, belief. और कौन सा बिलीफ? ये बिलीफ है कि जो सोशल थ्योरीज होती है, सोशल थ्योरीज जैसा मैंने अभी बताया कि दे शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हाट बेसिस? दे शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द basis of observable behavior. Observable behavior. Okay. अच्छा, क्या behavioralism? There is another word. Understand? There is another word also. One is behavioralism, जिसको मैंने अभी बताया, and there is another word which is BEHA. Behaviorism. This is distinct. This is different. How? Behavioralism क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ये एक बिलीफ है कि सोशल थ्योरीज को किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन. और किसका ऑब्जर्वेशन? ह्यूमन बिहेवियर का. और बिहेवियरिज्म क्या होता है? ये एक्चुअली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है. इट एक्चुअली इज वन ऑफ द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. एंड विच काइंड ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? इसका मतलब होता है ये एक ऐसी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है दैट होल्ड्स दैट ह्यूमन बिहेवियर्स कैन अल्टीमेटली बी एक्सप्लेन्ड. ओके, human behavior can ultimately be explained. इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो? किस कंडीशन में, किस एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ conditions and condition reactions, in terms of condition reactions. समझे बच्चा?
प्लीज आस्क योर डाउट आपको। और हम जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं वो एक बिहेवियरलिज्म का अप्रोच है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बिहेवियरलिज्म which is an approach that we have to study in political science, and behaviorism, which is actually a school of psychology which believes that human behavior can ultimately be explained in terms of conditioned reactions. यहाँ reactions का मतलब क्या है? Reaction का मतलब है reflexes. Okay, reflexes. Getting it? Okay. अगर इतना समझा आपने, okay, if you are completely new, then also you should be able to understand it because these are the key concepts. Okay. अगर इतना समझा तो देखिए आगे आप कह सकते हैं कि बिहेवियरल अप्रोच जो होता है पॉलिटिकल एनालिसिस का, दैट डेवलप्ड आउट ऑफ पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म से डेवलप हुआ। और पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? यहाँ पॉजिटिविज्म के किस आर्ग्यूमेंट को बिहेवियरलिज्म एक्सेप्ट करता है? वो ये है कि इसका एसर्शन जो है, एसर्शन होता है कि साइंटिफिक नॉलेज can be developed only on the basis of can be developed only on the basis of explanatory theories और वो ऐसी एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज होती हैं जो falsifiable ओके। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि इस चीज को समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो। इफ आई आस्क यू दैट गॉड does not exist. God does not exist. Okay, is it a scientific statement or is it an explanatory theory? No, according to positivism, this will not be an explanatory theory because this statement cannot be falsified. This statement cannot be falsified. आप नहीं प्रूव कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ऐसी चीज जो फॉल्सिफाई नहीं की जा सकती उसको एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज में नहीं शामिल किया जा सकता, उसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं बोला जा सकता। ओके, यू कांट term any particular knowledge to be scientific knowledge unless it establishes its falsifiability, because you cannot prove that God exists. That is why God does not exist is not a scientific knowledge. Okay, that is why God does not exist is not a scientific knowledge. Are you getting it? समझ रहे हैं इस बात को? ओके, समझ रहे हैं? तो दिस इज अबाउट बिहेवियरलिज्म। ओके, now I'll talk about institutionalism. Okay, or institutionalism. Institutionalism. इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन का मतलब एक मतलब इट इज एक्चुअली एन एंड्यूरिंग और यू कैन से स्टेबल set of arrangements, stable set of arrangements that regulates, or you can say that regulates individual or group behavior, इंडिविजुअल हो या ग्रुप बिहेवियर, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? इंडिविजुअल या ग्रुप बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। और इनका रेगुलेशन का बेसिस क्या होता है? इनका रेगुलेशन का बेसिस होता है रूल्स एंड
प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ओके, तो ये अगर इंस्टीट्यूशन का मतलब है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पास इनका एक फॉर्मल और लीगल स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल एंड लीगल स्ट्रक्चर। रेडिंग फॉर्मल और एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, और ये कुछ रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स, they employ these rules and decision making procedures। ओके, और ये रूल्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं। गेटिंग इट? एग्जाम्पल क्या हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इट माइट सरप्राइज यू, दिस आल्सो इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस, इलेक्शंस, पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ओके, पार्टी सिस्टम, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। Okay, so if this is the meaning of political institutions, then what is institutionalism? Institutionalism क्या होता है फिर? ये इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली ये एक अप्रोच है पॉलिटिकल एनालिसिस का। ओके, और दिस अप्रोच एक्चुअली फोकसेस ऑन व्हाट? इट एक्चुअली मेक्स एन अटेम्प्ट। ओके, यहाँ अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट इज टू टू मेक सेंस, टू मेक सेंस ऑफ पॉलिटिकल रियलिटीज, और पॉलिटिकल इवेंट्स या पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ओके, ये इनका मीनिंग क्या है उसको एक्सप्लेन करता है इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओके, और ये इसका मेथड क्या होता है? इट एक्चुअली डज सो बाय स्टडिंग, यू कैन से बाय स्टडिंग व्हाट, बाय स्टडिंग द causes and consequences, and consequences। ओके, इसके, because it is institutionalism of political institutions, political institutions। समझ रहे हो? अच्छा, अब इंस्टीट्यूशनलिज्म को भी देखेंगे तो इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं। ओके, उनमें सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओके, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म उसको समझते हैं। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओके, अच्छा, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको की पॉलिटिकल एक्टर्स बोला जाता है। ओके, की पॉलिटिकल एक्टर समझा जाता है। और इस पर्टिकुलर अप्रोच ने क्या किया, यहाँ पास द मेन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पास इस बात में फोकस किया जाता है कि पॉलिटिक्स टू फोकस अपॉन डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। ओके, और यहाँ पास और भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ फॉर्मल और लीगल रूल्स, ये चीज भी यहाँ पास देखने में आएगी आपको। ओके, और यहाँ पास जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको कंपैरेटिव और हिस्टोरिक
कंपैरेटिव सेंस में उसका हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन ये एक एक ओल्ड मेथड है, ये एक ओल्ड मेथड है। उसके बाद न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म करके आया, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओके, और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या बोला गया? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का एक्चुअली आइडिया क्या था? इसको एक्चुअली न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। यहाँ आइडिया क्या था? यहाँ आइडिया ये था कि this particular kind of approach has been increasingly in fashion, कहाँ पास, since 1980s, 1980s से। ठीक है, देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में इस अप्रोच को लेके आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी कोई क्लियर या डेवलप्ड मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्लियर डेवलप्ड मीनिंग ना होने के बाद भी इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इनफॉर्मल और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ओके, इनफॉर्मल और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंस्टीट्यूशनलिज्म था उसका फोकस मेनली था गवर्नमेंट में। ओके, लेकिन जब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात आई, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात आई, तो दे फोकस्ड मोर ऑन गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट institutionalism and new institutionalism. Okay, now I will talk about political philosophy. What is the meaning of political philosophy? Political philosophy का क्या मतलब होता है? मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, उनमें से आपने अगर आपने पिछले पॉड्स की वीडियोस देखे हैं तो आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस कॉन्सेप्ट्स हियर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिटिकल फिलॉसफी. देखिए, पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे पहले फिलॉसफी को समझना होगा. फिलॉसफी का क्या मतलब है? फिलॉसफी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा टर्म है, जनरल टर्म्स में अगर आप बात करें तो इट इज एक्चुअली, इट मीन्स और इट connotes what? The search for wisdom. Search for wisdom. Okay, or you can also say search for wisdom and also understanding. Focuses on understanding through critical reasoning. Through critical reasoning. ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पास आपको याद रखनी है कि फिलॉसफी को स्पेसिफिकली सेकेंड ऑर्डर डिसिप्लिन बोला जाता है. सेकेंड ऑर्डर डिसिप्लिन. अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डिसिप्लिन बोला जाने का रीजन क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिसिप्लिन किसे बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डिसिप्लिन बोला जाता है इंपेरिकल सब्जेक्ट्स को. इंपेरिकल सब्जेक्ट्स को. ओके, इंपेरिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पास कोई अगर इवेंट हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया, उसके ऊपर फिर दूसरी स्टेज में एनालिसिस आएगी कि उसकी क्रिटिकल रीजनिंग दूसरा स्टेज होगा, इसीलिए इसे बोला जा रहा है सेकेंड ऑर्डर डिसिप्लिन. ठीक है, तो फिलॉसफी का जो स्ट्रेस होता है वो साइंस से अलग है. क्यों? क्योंकि साइंस में आप कह सकते हैं कि साइंस में सेकेंडरी क्वेश्चंस नहीं होते. साइंस एक्चुअली इज रिलेटेड मोर इन इन एम्पिरिकल सब्जेक्ट्स.
साइंस का रिलेशन एम्पिरिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा होता है। ओके, गेटिंग इट? और फिलॉसफी में सेकेंडरी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेकेंडरी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड। आप कह सकते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, दैट इज समथिंग दैट इज एक्वायर्ड थ्रू एम्पिरिकल सब्जेक्ट्स एंड दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू साइंस। But philosophy will go for a second order discipline, go for a second degree of order, whereby it will be interested in how knowledge itself is required. Okay? How knowledge itself is required. समझ रहे हो आप? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिशनल वे में बात करें कि फिलोसफी किस तरह के क्वेश्चंस से अपने आप को, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करती आई है। जैसे आप बात करें कि अल्टीमेट अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, दिस इज one of the favorite subject of metaphysics. Actually, this is metaphysics. ओके, तो ये फिलोसफर्स इन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ पास। फिर जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है द ग्राउंड्स ऑफ नॉलेज, द ग्राउंड्स ऑफ नॉलेज, और इसको क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। ओके, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक। फिर इसके अलावा भी हो सकता है जैसे यू कैन से द बेसिस ऑफ मोरल कंडक्ट, बेसिस ऑफ moral conduct. So these are actually, and this is called what? Ethics. Ethics. So these are actually the uh, questions, the topics of philosophy. Okay. और पॉलिटिकल फिलोसफी की अगर बात करें तो व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी देन? पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? ये जनरली इसको कैसे देखा जाता है? एज अ सब फील्ड ऑफ एथिक्स, सब फील्ड ऑफ एथिक्स। ओके, और मोरल फिलोसफी, एथिक्स का और दूसरा क्या मतलब होता है? मोरल फिलोसफी। गेटिंग इट? और बिकॉज इट इज अ सब फील्ड ऑफ एथिक्स और मोरल फिलोसफी, essentially in that sense it is what? It is prescriptive, prescriptive, prescriptive होती है, normative होती है। prescriptive और normative होने का यहाँ पास क्या मतलब है? prescript और normative होने का मतलब है कि what should or should not be done। इसका कंसर्न क्या होता है? what should or should not be done। getting it? जैसे फॉर एग्जाम्पल should I obey the government, this is actually a question of political philosophy। okay, यहाँ why should I obey the government, that is also a question of philosophy। who should rule, okay, who should not rule, how should the rewards be distributed in the society, okay, what should be the limit of individual liberty। इस तरह की इंक्वायरीज जो होती है, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो होते हैं these are the questions of political philosophy। ओके, ठीक है। अगर एकेडमिक पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें, एकेडमिक पॉलिटिकल फिलोसफी की अगर बात करें, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये फर्स्टली किससे कंसर्न होता है? फर्स्टली ये कंसर्न होता है, यू कैन से critical evaluation of political beliefs, political beliefs। ओके, ये इसका फर्स्ट कंसर्न है। ओके, और इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि दो मेथड होते हैं रीजनिंग के। ओके, वो क्या है? वो है
इंडक्शन और डिडक्शन। तो इसमें इसको मतलब it actually pays attention to the both inductive as well as deductive forms of reasoning। और सेकंड एम्फेसिस कहाँ होता है इसका? सेकंड एम्फेसिस होता है, सेकंड एम्फेसिस किसमें होता है कि कॉन्सेप्ट्स जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अप्लाई होते हैं उनको क्लैरिफाई करना, उनको क्लैरिफाई करना। ओके, क्या अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव है, क्या ये हमेशा एक अनबाइज्ड एटीट्यूड रखेगी? नहीं। देखिए, कोई भी चीज जब प्रिस्क्रिप्टिव होती है, नॉर्मेटिव होती है, ओके, तो देन you can say that it is inevitably or it gets inevitably concerned with what? Concerned with justifying certain political view. Okay, जब भी आप बात करेंगे कि this should or this should not happen, so the things that you are actually prescribing, you are in a way justifying those certain political viewpoints. Okay, at the expense of others. That is something which you should understand. At the expense of others. Okay, तो ये चीज यहाँ पास ध्यान रखना, बिकॉज देयर विल बी जजमेंट्स। वो जजमेंट्स किस बेसिस में होंगे? वो जजमेंट्स इस बेसिस में होंगे कि कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्शन, उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। that prescription will also be its justification, yes, and that justification will be at the cost of other prescriptions, and in that sense um, objectivity sometimes is compromised। ओके, तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी कोई के बारे में इसको ध्यान रखना है, और इसी सेंस में एक्चुअली ये पॉलिटिकल साइंस से अलग है। ओके, फॉर द सेम रीजन यू कैन सी, फॉर द सेम रीजन political philosophy is distinct from political science। ओके, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस में अभी आऊंगा, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी, इनको इंटरचेंजेबल वे में यूज किया जाता है, लेकिन तब भी यहाँ पास फर्क है। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी को इंटरचेंजेबल वे में यूज, सिनोनिमस वे में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पास फर्क है, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी जो है ये, इसमें आपको क्या दिखेगा? दिस एक्चुअली इज बेस्ड ऑन इवेल्युएशन एंड एडवोकेसी, शुड और शुड नॉट। ओके, इवेल्युएशन एंड एडवोकेसी से ये रिलेट कर रहा है, और जो लैटर, ये इज एक्चुअली मोर ब्रॉड, यू कैन सी इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी से पॉलिटिकल थ्योरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ओके, और इसमें क्या होता है, बिकॉज इट इज थ्योरी, इट इज गोइंग टू मेनली इन्वॉल्व व्हाट? Explanation। Okay, explanation, and along with explanation it is also something which involves analysis। तो यहाँ पास इवेल्युएशन मिलता है आपको और एडवोकेसी मिलती है कि व्हाट शुड, प्रिस्क्रिप्शंस मिलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी में, और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या मिलता है? एक्सप्लेनेशंस मिलता है, एनालिसिस मिलती है। ओके, तो इनको इंटरचेंजेबल वे में या सिनोनिमस वे में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन जनरली
आप देखेंगे बुक्स में हो जाता है, ओके, बट नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो यहाँ पास एक और भी व्यू आता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल डिवाइड। हालांकि हम उसको बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या फर्क है, ठीक है, ओके। Now I will talk about political science. What is the meaning of political science here, and how this is different from political theory or political philosophy? Okay, so political science, political science. देखिए, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स के बारे में पहले आप समझा चुका हूँ। साइंस अगर वर्ड को थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो ये साइंस क्या है? एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, और लैटिन वर्ड कौन है? उसको बोलते हैं साइंटिया, ओके। ये है लैटिन वर्ड उसका। और ये साइंटिया का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। तो साइंस का क्या मतलब हुआ? जो जिस लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला होता है, साइंटिया का मतलब है नॉलेज। तो साइंस किसे कहते हैं? ये एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है, साइंस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, ओके। उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है एक रिलायबल एक्सप्लेनेशन किसी फिनोमिना का, ओके। किसी फिनोमिना का रिलायबल एक्सप्लेनेशन डेवलप करना। और ये रिलायबल एक्सप्लेनेशन किस बेसिस में डेवलप होते हैं? ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से होते हैं, ऑब्जर्वेशन से किए जाते हैं, डिडक्शंस होता है, ओके। तो उस फील्ड ऑफ स्टडी को, जो किसी फिनोमेना की रिलायबल एक्सप्लेनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स इसके बेसिस में करता है, उसे हम बोलते हैं साइंस, ओके। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द साइंस नाउ, गेटिंग इट? और अगर मैं बात करूं साइंटिफिक मेथड की, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड हियर? साइंटिफिक मेथड वो मेथड है जिसमें आप कह सकते हैं कुछ हाइपोथेसिस, ओके, कोई हाइपोथेसिस है, उनको वेरीफाई किया जाता है, ओके। तो साइंटिफिक मेथड इज एक्चुअली द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। अच्छा, हाइपोथेसिस का जो वेरिफिकेशन होगा वो किस मेथड से होगा? दैट विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग दोज हाइपोथेसिस अगेंस्ट एविडेंस, एविडेंस के बेसिस में, ओके। तो उन हाइपोथेसिस को अवेलेबल जो एविडेंस होंगे उनके बेसिस में टेस्ट किया जाएगा, ओके। और उस बेसिस में उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने का नाम है साइंटिफिक मेथड। अब अगर आप इसको समझ रहे हो कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी व्हाट? वैल्यू फ्री। प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होंगे इसमें, क्योंकि एविडेंस के बेसिस में, अवेलेबल एविडेंस के बेसिस में किसी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने में कोई प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। So it is going to be value free, and it is also going to be objective, okay. And that is why it is said that the scientific method results into what? Objective truth, objective truth, समझ रहे हैं आप? Scientific methods results into objective truth, okay। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, इसके आगे अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस में कि साइंटिफिक मेथड को के कॉन्टेक्स्ट में कार्ल पॉपर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पास कही है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि साइंस
can only falsify hypothesis. Okay, जब कार्ल पॉपर बोलता है, जैसे according to कार्ल पॉपर, science can only falsify hypothesis. Getting it? और ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि फैक्ट्स, ओके, फैक्ट्स जो है दे कैन ऑलवेज बी डिस्प्रूव्ड. डिस्प्रूव्ड कैसे? बाय लैटर एक्सपेरिमेंट्स. ओके, अच्छा, दिस इज व्हाट वी नो एज falsifiability. So this is actually also the test of scientific knowledge. कार्ल पॉपर ये भी बोलते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज, जैसा कि हमने अभी पॉजिटिविज्म में देखा, वो एक ऐसा नॉलेज है जो अपनी फॉल्सिफिएबिलिटी को एस्टैब्लिश कर चुका हो. Things which is not falsifiable is not a part of scientific knowledge. Okay, then there is another word, एक बहुत important word यहाँ फिर से आता है, which is called scienticism. Scienticism, अब इसका क्या मतलब होता है? साइंटिसिज्म का क्या मतलब होता है? साइंटिसिज्म अपने आप में एक बिलीफ है. कैसा बिलीफ? एक बिलीफ है कि साइंटिफिक मेथड जो होता है, साइंटिफिक मेथड, इसके बारे में भी आपने सीखा, scientific method is the only source of reliable knowledge. Okay, if one believes that scientific method is the only source of reliable knowledge, then that is what we know as scienticism. That is what we know as scienticism. Getting it? अच्छा, साइंटिसिज्म को जो सपोर्ट करने वाले होंगे, मतलब those who are the proponents of scientism, they would advocate for what? For the adoption of the scientific methods in philosophy, history, politics, natural science में भी. ओके, सारी सारी जगह. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन्स की अगर बात करें कि मार्क्सिज्म हो गया, ओके, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, ओके, रेसिज्म हो गया, तो वो साइंटिस्टिक है ना? ओके, दे आर दे आर साइंटिस्टिक्स. They are called, they are scientific in that sense, you can say. ठीक है, तो ये हुआ साइंस की अंडरस्टैंडिंग. अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की. पॉलिटिकल साइंस की, तो आपने समझा कि साइंस का क्या मतलब होता है ना. पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल साइंस को दो टर्म्स में आप समझ सकते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक. ओके, जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक एकेडमिक डिसिप्लिन है. एकेडमिक डिसिप्लिन. ओके, और एक ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन जो क्या करता है, which undertakes which systematically describe, or you can say analyze and explain the working of the government. Okay, scientific discipline which systematically describes, analyzes, okay, and explains
the working of government. Okay, not only the working of government, it is also concerned with the relationship between political and non-political institutions and also the processes. ओके, जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर जो है पॉलिटिकल साइंस का वो क्या है? ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का स्टेट। ओके, गेटिंग इट? और 20th सेंचुरी में अगर बात करें तो दिस एक्चुअली आल्सो come to include various others socio-economic processes. ओके, एक वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, डेरिवेशन के अगर फ्रेज को यूज करें, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज को अफेक्ट करता है। ओके, तो इस सेंस में अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें जो मैंने डेफिनेशन आपको दी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये बहुत सारी चीजों को इनकम्पास करता है। यू कैन से दैट इट इनकम्पासेस both descriptive as well as normative theory. Okay, descriptive as well as normative theory. Okay, मतलब इसका क्या होगा कि ये डिस्क्राइब भी करेगा, डिस्क्राइब और एनालाइज भी करेगा ऑपरेशंस को, और क्योंकि ये नॉर्मेटिव है तो उसके बाद वो प्रिस्क्राइब भी करेगा। ओके, उसके बाद ये प्रिस्क्राइब भी करेगा। अच्छा, अगर नैरो सेंस में पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करो तो उस सेंस में ये क्या है? ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स मैटर की स्टडी बन जाता है। ओके, और उसमें बहुत नेचुरल साइंस के ही कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करता है। तो पॉलिटिकल साइंस अगर ट्रेडिशनल नैरो सेंस में आप देखें तो इट बिकम्स स्ट्रिक्टली द एम्पिरिकल एंड वैल्यू फ्री अप्रोच। ओके, वैल्यू फ्री अप्रोच टू पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। गेटिंग इट? और बिकॉज देखिए, अंडरस्टैंड, एम्पिरिकल एंड वैल्यू फ्री, empirical and value free approach, ये अप्रोच किसका प्रोडक्ट था? इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। और यही पॉजिटिविज्म अपनी हाइट में पहुंचा कहां? बिहेवियरलिज्म के टाइम में। दिस वाज द पीक ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट सिस्टम, बिहेवियरलिज्म मूवमेंट में। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बहुत शार्प डिस्टिंक्शन मिलेगा किसके बीच? पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी के बीच, पॉलिटिकल साइंस के बीच, पॉलिटिकल साइंस के बीच। ओके, तो बिहेवियरलिस्ट ने पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक एथिकल रेजिड्यू पर बोल के छोड़ दिया था। And this sharp distinction that you see here is because of a search, or you can say a quest, is sometimes which also turn out to be an obsession of value-free approach. Okay, obsession of value-free approach. Getting it? क्योंकि वैल्यू फ्री अप्रोच में ऑब्जेक्टिविटी होगी, उसमें प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होगी। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमने क्या देखा है? इट इज नॉर्मेटिव to the extent that sometimes it is not objective. Okay, because when you prescribe something you are actually giving it preference at the cost of others. तो वो एक ऑब्जेक्टिविटी वहां पास नहीं रहती। यहाँ प्रिस्क्रिप्शंस में, नॉर्म्स में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। ऑब्जेक्टिविटी कहाँ होगी? वैल्यू फ्री अप्रोच में। ठीक है, तो यहाँ पास ये डिस्टिंक्शन बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा शार्प हो गया पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में। कब? बिहेवियरिज्म के टाइम में। ओके, which was actually the height of positivism. Okay, so this is about political science. Okay, political science terms को अगर आप explain करें,
ठीक है? Any doubt here? You can ask any doubt if you have any doubt here. Okay. So I'll move to the next concept. And now next key concept is conservatism. Conservatism. Okay? Conservatism. अच्छा, कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल एटीट्यूड है। ये ऐसा पॉलिटिकल एटीट्यूड है जो एक डिजायर रखता है किस चीज की, कंजर्व करने की। और ये कंजर्व करने की डिजायर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होती है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में। So those people who will be conservative, they will be resistance to any kind. They will present resistance to any kind of change because they want to conserve the things here. Okay. और अगर रेजिस्टेंस ना होगा चेंज के लिए तो कम से कम सस्पिशन होगा। ओके, गेटिंग इट? अच्छा, कंजर्वेटिज्म को दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कैसे अलग करके देख सकते हैं? वो ऐसे, जैसे सेंट्रल थीम अगर बात करें कंजर्वेटिज्म की, तो वो क्या है? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन। ओके। ह्यूमन इम्परफेक्शन। ऑर्गेनिक सोसाइटी। ओके। अथॉरिटी। प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी सेंट्रल थीम्स हैं। एक जो कंजर्वेटिव व्यक्ति होता है, कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट का जो होगा, उसके लिए ट्रेडिशंस क्या है? एक एक ऐसी ट्रेडिशन क्या है? एक ऐसी चीज है जो पास्ट के एक्यूमुलेटेड विजडम को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, जो पास्ट के एक्यूमुलेटेड विजडम को रिफ्लेक्ट करती हो। ओके। और इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेडिशनल वे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? दे एक्चुअली आर द थिंग्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट फॉर एनी कंजर्वेटिव is actually the proof of them being correct or them being justified, them being virtuous. Okay. कंजर्वेटिव व्यू ह्यूमन नेचर को लेके अगर बात करें कि ह्यूमन नेचर को लेके कंजर्वेटिव व्यू क्या होता है, तो वो पेसिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्टिक। ओके। क्यों पेसिमिस्टिक होता है? क्योंकि कंजर्वेटिव ह्यूमन बींग्स को क्या मानते हैं? लिमिटेड मानते हैं। लिमिटेड इन देयर कैपेसिटी। और ना सिर्फ लिमिटेड, दे आल्सो कंसीडर ह्यूमन बींग्स टू बी डिपेंडेंट। ओके। डिपेंडेंट। Getting it? To some extent, they also say that conservatives also believe that human beings are security seeking creatures. ओके। फिर दूसरा, अगर आप बात करें कि अदर देन लिमिटेड, डिपेंडेंट, सिक्योरिटी सीकिंग क्रीचर्स, कंजर्वेटिव्स और कंजर्वेटिज्म also believe that human beings, they are morally corrupt, they are selfish, okay, they are power hungry। और इन्हीं वजह से कंजर्वेटिव्स का मानना होता है, या कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि ह्यूमन, और आप कहें इस तरह से कि ह्यूमन रैशनैलिटी जो होती है, ह्यूमन रैशनैलिटी, दैट विल नेवर बी एबल टू कोप विद द infinite complexities of the world, infinite complexities of the world, they will never be able to cope with it। Okay, so in a sense humans are limited, they will not be able to uh, uh, cope, or they will not be able to cope or act according to the
कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वर्ड विच आर इनफाइनाइट एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑर्गेनिक सोसाइटी का क्या मतलब है? व्हाई कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट्स बिलीव्स इन ऑर्गेनिक सोसाइटी? ऑर्गेनिक सोसाइटी का मतलब क्या है? यहाँ बिलीफ ये है ऑर्गेनिक सोसाइटी से कि आप इसको ऐसे समझिए। उनका मानना है कि सोसाइटी को it should be seen as organic whole. Okay, it should be seen as organic whole. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस को अगर बात करें, इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, ओके, वैल्यूज की बात करते हैं जो सोसाइटी में, ये सारी के सारी इंस्टीट्यूशंस वैल्यू जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? दे आर द प्रोडक्ट ऑफ नेसेसिटीज। मैं कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट को क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ? ओके, because they are the product of necessities, that is why they need to be preserved. They need to be preserved. They need to be safeguarded. Okay, they need to be safeguarded, and they are actually very crucial in also safeguarding the fragile fabric of society. Fragile fabric of society. Okay, अथॉरिटी को लेके कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट का क्या ओपिनियन है? अथॉरिटी को लेके, अथॉरिटी की बात करें तो कंजर्वेटिव्स ने का ये कहना है कि अथॉरिटी क्या है? सोशल कोहेशन का बेसिस है। इट इज द बेसिस ऑफ सोशल कोहेशन। बेसिस ऑफ सोशल कोहेशन। ओके, उनका ये भी कहना है कि अथॉरिटी से ये एक्चुअली इट प्रोवाइड्स सेंस, और यू कैन से कि ये लोगों को क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स सेंस टू द पीपल अबाउट हु दे आर। ओके, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, व्हाट इज expected from them. That is something which is ensured by authority. Getting it? That is something which is ensured by authority. Just 1 minute. I'll resume the class.
Okay, so this is their view about authority. ओके, कंजर्वेटिव्स का व्यू अथॉरिटी को लेके ये है. अच्छा, कंजर्वेटिव की अगर बात करें कि प्रॉपर्टी, तो व्हाई दे वैल्यू प्रॉपर्टी, व्हाई कंजर्वेटिव्स वैल्यू प्रॉपर्टी? बिकॉज प्रॉपर्टी क्या करती है? इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टू पीपल, security to people. Getting it? Now, this property not only just provides security to people, it also provides what? It also provides independence, independence from the government, independence from the government. Okay, conservatives का ये भी मानना है कि property is something which encourages people to respect law, respect law. Not only that, it also encourages people to respect property of others, property of others. Okay, लेकिन कंजर्वेटिव्स के विद इन कंजर्वेटिव्स ओनली देयर आर वेरियस डिविजन्स. उसको देखते हैं. चलिए, कंजर्वेटिव्स के अंदर ही बहुत सारे डिविजन्स हैं. So I will cover divisions within conservative school of thought. Let us see division between within conservatism. Division, divisions within conservative thought. ठीक. अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डिविजन्स हैं. और इसमें एक जैसे एक आता है अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म. ओके, तो ये बहुत ऑटोक्रेटिक, इट इज स्टार्कली ऑटोक्रेटिक.
ओके, स्टार्कली ऑटोक्रेटिक है और रिएक्शनरी होता है। यस, रिएक्शनरी, गेटिंग इट। अच्छा, इसका एम्फेसिस किस में होता है? इसका एम्फेसिस होता है गवर्नमेंट फ्रॉम अबव, गवर्नमेंट फ्रॉम अबव। उस केस में क्या होगा? अथॉरिटी को बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो इस एक्चुअली दिस स्कूल ऑफ थॉट अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, ये स्ट्रेसेस ऑन द गवर्नमेंट फ्रॉम अबव। ना सिर्फ इतना, बल्कि इनका ये मानना होता है कि गवर्नमेंट फ्रॉम अबव इज द ओनली वे हाउ यू कैन एस्टैब्लिश द ऑर्डर इन द सोसाइटी। ओके, गेटिंग इट। जैसे फॉर एग्जांपल एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म की बात करें तो वो एडमंड बर्क जैसे स्कॉलर्स की राइटिंग में वो दिखता है, एडमंड बर्क जैसे स्कॉलर्स की राइटिंग में दिखा है। ओके, फिर ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिज्म के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म। पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म, ओके, इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली इसमें कॉम्बिनेशन दिखेगा। ओके, कॉम्बिनेशन किसका? इट विल बी एक्चुअली बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रूडेंस। ओके, प्रूडेंस यहां दिखेगा, रिफॉर्म फ्रॉम द एबव मेक बिलीव दिखेगा, रिफॉर्म फ्रॉम एबव। ये माना जाएगा पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म में कि रिफॉर्म फ्रॉम एबव ये क्या है? इट इज बेटर देन रेवोल्यूशन, इट इज बेटर देन रिवोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंजर्वेटिज्म है तो दिस विल बी रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब दिस विल प्रेजेंट रेजिस्टेंस टू चेंज, इफ नॉट रेजिस्टेंस देन एट लीस्ट सस्पिशन और स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स चेंज। ओके, तो इसमें बहुत सारे हमने अभी देखा अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। अब पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म में क्या है? इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रूडेंस एंड प्रिंसिपल, यहाँ पास जैसा कि a belief that reform from above is going to be better than revolution. Okay, revolution कहाँ? Revolution from below, revolution from below। ठीक है, एक चीज और, पैटर्नलिस्टिक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पास? क्योंकि इसका ये मानना होता है कि अकॉर्डिंग टू पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म या पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसका ये बिलीफ है कि जो वेल्दी होते हैं, वेल्दी property individuals, okay, they have this very obligation. What obligation? This obligation to look after, look after the poor, okay, or less well off, ठीक है। और ये मानता है कि this obligation which is actually in form of duty, okay, it is the price of the privilege that they are enjoying here, price of the privilege that they are enjoying, okay, so this duty should be seen as the price of the privilege that is being enjoyed here। समझ रहे हो? ये मतलब है यहाँ पास इसका। एनी डाउट? एनी डाउट है? ओके, ये आइडिया कि wealthy have this very duty to look after the poor or the less well off, they have the obligation to look after the less well off, these and this obligation is more of a duty of the wealthy, and this duty should be seen as a price of the privilege. All that is very much prevalent in the writings of scholars like Benjamin Disraeli, okay, Disraeli, इनकी राइटिंग्स में बहुत अच्छे से दिखता है।
और पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म का ये नोशन ये बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, किसमें बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, वन नेशन कंजर्वेटिज्म में। वन नेशन कंजर्वेटिज्म जो किसके लिए एडवोकेट करता है, विच एडवोकेट्स फॉर मिडिल वे, मिडिल वे। ओके, मिडिल वे। मिडिल वे का क्या मतलब है? इट इज एक्चुअली एन अप्रोच, मिडिल वे अप्रोच टू व्हाट? स्टेट मार्केट रिलेशन, स्टेट मार्केट रिलेशन। getting it? मिडिल वे अप्रोच टू स्टेट मार्केट रिलेशन। और ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ओके, वेलफेयरिज्म, क्या इसको सपोर्ट करता है? हाँ, लेकिन ओनली अ क्वालिफाइड सपोर्ट, ओके, क्वालिफाइड सपोर्ट है इसको। ओके, सो दिस इज अबाउट पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म। अब बात करेंगे लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म की। ओके, लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म। लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म, इसको समझो। लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म क्या होता है? इट एक्चुअली एडवोकेट्स फॉर व्हाट? greatest possible, advocacy is for greatest possible economic economic liberty, greatest possible economic liberty, ठीक है? और least possible government regulation, least possible government regulation, ठीक? किस कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेशन? सोशल लाइफ में, ओके। और in that sense it actually echoes what? Echoes laissez-faire liberalism, okay, it echoes laissez-faire laissez-faire liberalism, laissez-faire liberalism। कोई डाउट? Giving you 1 minute, if you have any doubt ask me। Okay, I don't think that you have any doubt। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें कि लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म यहाँ पास एक बिलीफ को हार्नेस करता है। वो क्या है? वो बिलीफ है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव, और एक तरह से इसको ये चीज इसको कंजर्वेटिव सोशल फिलोसफी बना देती है, ओके, जो अथॉरिटी को एम्फेसाइज करे, इसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करे, ओके। और दिस ट्रेडिशन actually gave rise to what? New right theories,
न्यू राइट थियोरीज। ओके, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो कंजर्वेटिव आइडियाज ने और डॉक्ट्रिन्स ने ये पहले कहाँ इमर्ज हुई, 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी। और ये एक्चुअली एक तरह का एक रिएक्शन था जो ग्रोइंग पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज थे, उनके खिलाफ रिएक्शन था कंजर्वेटिव। ओके, और इसको आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अच्छे से इमर्ज होते देखा है। ओके, so this was about the key economic concept of conservatism। ठीक है, अगली सीरीज में मैं और सारी कॉन्सेप्ट्स करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुराने वीडियोस भी देखें जिसमें बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट को भी मैंने एक्सप्लेन किया है।